Good morning, students. Today we will read chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. The February Revolution in Petrograd. Petrograd में फरवरी क्रांति. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace and official buildings, including the palace where the Duma met. बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं. जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar desires to dissolve the Duma. संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे. On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया. In many factories, women led the way to strikes. बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी. This came to be called the International Women's Day. इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेविस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई. At this stage, no political party was actively organizing the movement. इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वे फिर इकट्ठा होने लगे. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया. On Sunday 25 February, the government suspended the Duma. रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया. Politicians spoke out against the measures. सरकार के फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे. Demonstrators returned in force to the streets of the left bank on the 26th. 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए. On the 27th, the police headquarters were ransacked. 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया.
The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours, and democracy. रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया. An officer was shot at the barrack of a regiment and 3 other regiments mutinied. गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैराक में अपने एक अफसर पर गोली चला दी. 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी. Voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma meet. This was the Petrograd Soviet. उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी. यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ. द वेरी नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द जार. अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट. सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे. ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन टू मार्च. उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी. सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री. सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली. रशिया's future would be decided by a constitutional assembly elected on the basis of universal adult suffrage. तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा. पेट्रोग्राड had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था. आफ्टर फरवरी के बाद आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट. अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट्स अमंग देम वर्कड टू गेट टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे. Restrictions on public meetings and associations were removed. जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदियां हटा ली गई. Soviets like the Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of election was followed. हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई. In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए. He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे. Now he felt it was time for Soviets to take over power. उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized. लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए,
सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। दीज थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। ये 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर ए socialist revolution and the provisional government needed to be supported, but the developments of the subsequent months changed their attitude. उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। ओके स्टूडेंट्स।